हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर का हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर वाज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ये हम आज इसका स्टार्टिंग करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। General properties of nucleus. The first systematic effort for explain the structure of an atoms. सबसे पहले एटम हमें जे थॉमसन ने बताया था। तो जे थॉमसन ने हमें क्या बोला? In 1907, जे थॉमसन suggested that the atom consisted of an equal numbers of positive and negative charges. The radius of the atom was established to be of the order of 10 raised to power minus 10 meter. Okay, he proposed that in an atom the positive and negative charges, proton and electrons, are distributed uniformly within its spherical volume. It is also called plum pudding model. जे थॉमसन ने इन 1907 में हमें बताया कि जो एटम होता है उसमें इक्वल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं, जिसका ऑर्डर एटम का ऑर्डर क्या होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। और जिसे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी हम बोलते हैं, और ये स्फेरिकल वॉल्यूम होता है। इट इज़ ऑल्सो, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जे थॉमसन का मॉडल है उसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे वो निकले, ड्रॉबैक्स निकले। उसके बाद हमें लॉर्ड रदरफोर्ड ने हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, जो हमें बताता है in 1911 by the study of the scattering of alpha particle from thin sheet of metals. The alpha particles are positive charge. Each particle carries 2 unit of positive charges and possess 4 atomic mass unit. AMU मतलब atomic mass unit. The alpha particle pass through the air with a high velocity. Rutherford directed the beam of alpha particle on a target made of fluorescent screen, जो है zinc sulfide screen. In between, he placed a thin gold foil in the path of alpha particle. When these alpha particles are bombarded on a thin gold foil of about 4 into 10 raised to power minus 6 meter thickness, the diameter of the atom of the gold is 4 into 10 raised to power minus 10 meter. Some alpha particles are deflected at very small angle and a few are actually reflected back along their path. ये है रदरफोर्ड का मॉडल। उसने क्या किया, एक न्यूक्लियस रखा जिसमें हमने थिन गोल्ड फॉयल में हमने बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल डाले। तो कुछ तो डिफ्लेक्टेड हो गए, कुछ रिजेक्टेड हो गए। ये है हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। ओके, तो हमें रदरफोर्ड ने और भी बताया कि इसका जो डायमीटर ऑफ द एटम है वो है 10⁻⁻10 मीटर, और गोल्ड फॉयल 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर थिकनेस से बहुत पतली है। ठीक है, ये हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। पहले हमने जे थॉमसन का डिस्कस किया, उसके बाद रदरफोर्ड का। अब हम देखेंगे जो रदरफोर्ड का मॉडल है, क्या आप उसके हम कंक्लूडेड करेंगे। ठीक है, द मॉडल हैज़ अ लार्ज एम्प्टी स्पेस since most of the alpha particle pass through the metallic foil undeflected. A lump of mass located at the center is known as the nucleus. जो ये है इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो सेंटर में है। It is centrally positive charge where the mass of the atom is concentrated, which repels and causes the alpha particle to deflect it considerable from its original path. The volume occupied by this heavy positive charge nucleus is only a small fraction of the total volume of the atoms.
There are just enough electrons outside the positive nucleus to provide a balance of positive and negative charges. The central nucleus has a positive charge which is different in magnitude for each other. तो ये हमारे 5 हमें रदरफोर्ड के मॉडल को हमने कंक्लूडेड किया। ओके, तो हमारा कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है जिसे हमने इम्पॉर्टेंट नोट राइट किया है। diameter of the nucleus of the atom which is found to be of the order of 10 raised to power minus 15 meter. Okay, atoms as a whole is of the order of 10 raised to power minus 10 meter. So ये अभी तक हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जे थॉमसन का मॉडल डिस्कस किया, उसके बाद हमने लॉर्ड रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस किया। जो लॉर्ड रदरफोर्ड के उसके हम मॉडल के हमने कंक्लूडेड किया कि क्या क्या रदरफोर्ड ने मॉडल में बताया था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम इसमें अल्फ़ा पार्टिकल का हम डिस्टेंस निकालेंगे। Let an alpha particle of energy E be directed towards the center of the nucleus. Okay, it reaches its path at a point of nearest approach R0 from the nucleus. Okay, ये हमने क्या बोला कि हमने कोई भी एक अल्फ़ा पार्टिकल लिया है जिसकी एनर्जी है E और वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस की टुवर्ड्स। ओके, और उसमें हमने R0 लिया है, क्या है, पॉइंट ऑफ द नियरेस्ट अप्रोच R0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसे हमने R0 से हमने डिस्कस किया। लेट M लिया हमने मास ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल। जो हमने अल्फ़ा पार्टिकल लिया था ना, उसका एनर्जी E है तो मास M लिया हमने। एंड U हमारी वेलोसिटी जो हमारे न्यूक्लियस की तरफ जा रही है। फिर देन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। यू मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये हुआ हमारा काइनेटिक एनर्जी। एज द अल्फ़ा पार्टिकल अप्रोच द न्यूक्लियस इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेजुअली बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रही है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सो हमने कन्वर्ट किया तो एनर्जी क्या हुई, 1/4πε0 ZE2E अपॉन R0। वैसे हमने इसको कैलकुलेट किया, एनर्जी इक्वल टू 1/4πε0 2 ZE² R0। R0 हमने निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है। 1/4πε0 2 ZE² E। एनर्जी क्या होती है, हाफ mu²। यहाँ हमारी एनर्जी ये थी, बस इसमें हमने पुट किया और हमारा डिस्टेंस निकल गया। क्योंकि तो क्या निकला डिस्टेंस हमारा, R0 इक्वल टू ZE² πε0 mu²। ये हमारा है डिस्टेंस अल्फ़ा पार्टिकल जब न्यूक्लियस की तरफ जा रही है। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले जे थॉमसन डिस्कस किया, उसके बाद हमने रदरफोर्ड का मॉडल, तब हमने ये डिस्टेंस किया कि जब कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल हम जब न्यूक्लियस की तरफ डाल रहे तो उसकी डिस्टेंस कितना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस करेंगे, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम वो डिस्कस करेंगे, और छोटे छोटे जैसे न्यूक्लियस साइज हो गया वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू वॉच दिस video.